Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, as we have already completed first period of human development, that was prenatal period or prenatal stage. In today's lecture, we will focus on another important stage of human development, that is entitled as infancy. Dear students, as we know that infancy is the first postnatal stage which starts from birth and remains up to 2 years of old. There are two stages. One stage is being called prenatal stage. ये वो स्टेज है जो बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है, यानी कि जब एक बच्चा मां की कोख में 9 महीने रहता है तो उस स्टेज को प्रीनेटल स्टेज कहते हैं. एंड व्हेन द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी एंड सेम न्यूबॉर्न comes contact with the environment, and that stage is known as postnatal stage. I mean to say you, postnatal stage starts after the birth, और जो बर्थ से पहले स्टेज होता है तो उसे प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है. In today's lecture, our focus is purely on infancy. Infancy is one of the postnatal stages of human development. Infancy, that stage of human development which starts from birth and remains up to the age of 2 years. यानी कि पैदाइश से लेके 2 साल तक जो पीरियड या स्टेज होता है तो उसे हम कहते हैं इन्फेंसी. Dear students, the term is derived from a Latin word infans, which means unable to speak or speechless. Infants in the infancy stage are as the same suggests do not possess the ability to speak, and the birth giver has the responsibility to take care. Keeping in view the infancy stage. Infancy basically derived from the Latin word infanus. Infanus means speechless, do not speak. यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है. The child is not able to speak or communicate. जैसे कि हमने ब्रीफ अकाउंट ऑलरेडी दिया है, जीन पियाजे ने थ्योरी propound की है. That theory is known as cognitive development theory. And Jean Piaget classified the cognitive development theory into 4 important stages. पहला स्टेज जो है that is known as sensory motor stage. Second stage is known as pre-operational stage. Third stage is known as concrete operational stage. Last and fourth stage is known as formal operational stage. Sensory motor stage वो stage है where the child expresses the behavior with the help of motor organs. क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है, बच्चा बात नहीं कर पाता है. जो न्यू बॉर्न बेबी है वो बात नहीं या कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है. अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए वो हाथों का इस्तेमाल करता है,
पाँवों का इस्तेमाल करता है। चाइल्ड इवन बिगिन्स क्राई इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द बिहेवियर। तो इसीलिए इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। अधिकतर बच्चा जो है वो मोटर ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है, और ये स्टेज जो होता है ये विदाउट लैंग्वेज होता है। दैट इज वाई इन्फेंसी स्टेज जो है, जो बर्थ से लेके 2 साल तक स्टेज होता है, इसमें बच्चा जो है वो स्पीचलेस होता है, उसमें कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलप्स बाय अटेनिंग सम बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। इसीलिए केयर गिवर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एस्पेशली द मदर, टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड। इस न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल रखना है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन नहीं होती है, वो नहीं बोल पाता है। मदर के लिए इसीलिए ज़रूरी है, अब यहाँ पर मदर ही का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी फैमिली और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा हंग्री तो मत है, टू अंडरस्टैंड द हंगर ऑफ, आई मीन टू से यू चाइल्ड। तो उस वक्त उसे फूड चाहिए। कभी कभार बच्चा बीमार होता है तो बच्चा नहीं बोल सकता है, जो सिर्फ 6 महीने का होगा, 7 महीने का होगा, या इवन 1 मंथ या 2 मंथ्स का होगा। सो द चाइल्ड एक्सप्रेसेस द पेन by means of various reflexes. At that time, it is the responsibility of the parents to understand the whole behavior of the infant. क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, इन्फेंसी को डिराइव किया गया है टर्म इन्फेनस, which means speechless. I mean to say you, the infant is not able to talk or communicate. Dear students, newborns typically sleep for about 16 to 18 hours a day, but the total amount of time spent sleeping gradually decreases to about 9 to 12 hours a day by age of 2 years. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो अधिकतर सोते रहते हैं 1 साल तक, यानी कि बर्थ से लेके 1 साल तक वो ज़्यादा सोते रहते हैं। और साइंटिफिकली इट हैज़ प्रूव्ड कि बच्चे जो होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज अप टू द एज ऑफ 1 ईयर वो 16 से लेके 18 घंटे सोते हैं, और 1 साल के बाद आफ्टर द 1 ईयर तो उसके बाद जो स्लीपिंग साइकिल है ये डिक्रीज हो जाता है। अब 1 साल के बाद जो बच्चे हैं वो 9 से लेके 12 आवर्स तक सोते हैं, यानी कि 9 से लेके 12 घंटे वो सोते हैं। इस तरीके से स्लीपिंग जो साइकिल है ये डिक्रीज हो जाता है। मे बी समटाइम्स एग्जामिनर विल आस्क टू एन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इन्फेंसी पीरियड में जो पहला साल बर्थ से लेके 1 साल तक बच्चे का होता है, अप्रोक्सीमेटली बच्चा कितने आवर्स सोता है? 16 से लेके 18 आवर्स तक, 9 से लेके 12 आवर्स तक, बोथ एंड बी नन ऑफ द अबो। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए 16 से लेके 18 आवर्स तक। Dear students, now we will focus on certain characteristics of infancy. हम अब मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेंगे। Infancy includes various characteristics. Number 1, physical development. Physical growth refers to an increase in body size, such as length, height, weight, and in the size of organs. Infancy is a period when the baby grows very fast. During infancy, the baby doubles in length and triples in weight. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है
Physical growth and development describes change in the body size and shape, चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है या इंटरनल ऑर्गन्स है। तो ह्यूमन चाइल्ड के जो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी है उनका शेप साइज और टेक्सचर चेंज हो जाता है। कीपिंग इन व्यू द इन्फेंसी, इन्फेंसी में रैपिड बहुत तेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फिजिकल ऑर्गन्स की। ड्यूरिंग इन्फेंसी जो बेबी का जो आई मीन टू से यू लेंथ होती है वो डबल हो जाती है और वेट एक न्यू बॉर्न का ट्रिपल हो जाता है, यानी कि हाइट डबल हो जाती है इन्फेंसी पीरियड में और वेट एक बच्चे का जो है वो ट्रिपल हो जाता है। द एवरेज न्यू बॉर्न इन्फेंट वेट इज, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका एवरेज वेट होता है 3.4 kg। अगर हम अब पाउंड्स के हिसाब से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 7.5 पाउंड्स बनता है। और न्यू बॉर्न बेबी की जो लेंथ होती है यानी कि हाइट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी इज अप्रोक्सीमेटली 51 सेंटीमीटर, ये ऑलमोस्टली 20 इंचेस बन जाता है। द न्यू बॉर्न बेबी गेन्स वेट एट एन एवरेज ऑफ 170 to 200 ग्राम पर वीक। एक न्यू बॉर्न बेबी का वजन पर वीक कितना इंक्रीज हो जाता है? 170 to 200 ग्राम्स पर वीक। और ग्रोथ कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस और आहिस्ता आहिस्ता से यही जो वजन है एक बच्चे का ये डिक्रीज हो जाता है आफ्टर 12 मंथ्स। जब एक बच्चा बराबर 1 साल का हो जाता है तो उसके बाद वजन घटता है। जिस तरीके से पहले उसकी वजन की इंप्रूवमेंट होती थी यानी कि वेट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली 170 to 200 ग्राम्स। अब 1 साल के बाद कितना वजन इंक्रीज हो जाता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम पर वीक। अब सिर्फ 60 ग्राम वो इंक्रीज उसका वजन हो जाता है। A reflex is an involuntary or automatic action that your body does in response to something without you can even having to think about it. For example, blinking of eyes, sucking, crawling, etc. The students, इन्फेंसी पीरियड में बच्चा जो है वो रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द बिहेवियर, यानी कि उसमें इनवॉलेंट्री अनकंट्रोलेबल रिफ्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे के आँखों पे लाइट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो जाएगा। अगर हम बच्चे के सामने कोई चीज़ रखेंगे, द चाइल्ड विल पुट दैट थिंग इन द माउथ एंड विल ट्राई टू सक, यानी कि जो सकिंग एज ए रिफ्लेक्स बच्चे में है, दैट विल हेल्प और सपोर्ट टू द बेबी टू suck the things, as it is already highlighted by Jean Piaget, one of the developmental psychologists. उसने कॉन्सेप्ट दिया है स्कीमास का। स्कीमास आर बेसिकली मेंटल स्ट्रक्चर्स और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स लाइक sucking schema is, looking schema is, grasping schema is, crawling schema is. इनहेरेंटली बच्चे में एक इनहेरेंट कैपेसिटी है क्रॉलिंग की, इसीलिए बच्चा घुटनों के बल चलता है। या लुकिंग स्कीमा है, किसी चीज़ की तरफ खूर खूर देखना। ये ऑल रिफ्लेक्सेस जो है एक इन्फेंट यूज करता है।
Dear students, the baby's teeth starts to come in usually at about 6 months of age. Infancy period में बच्चे के दांत निकल आते हैं। स्पेशली 6 महीने तक बच्चे का कोई भी दांत नहीं होता है, तो फिर 6 महीने के बाद या एग्जैक्टली एट 6 months ओल्ड बच्चे में दांत आ जाते हैं। अगर आप इमेज पे भी फोकस करोगे, किस तरीके से बच्चे के मुंह में विजिबल टीथ दिखाई देते हैं, और भी इमेजेस इस स्लाइड पे मैंने डिस्क्राइब किए हैं, जहां पर आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी क्रॉलिंग के रिलेटेड भी और सकिंग के रिलेटेड भी। किस तरीके से बच्चा अपनी उंगलियों को मुंह में डालता है फिर सक करता है। Now, after the physical development, we will focus next development, that is development number 2. I mean to say you cognitive development. Cognitive or intellectual development means the growth of a child ability to think and reason. It is about how they organize their minds, ideas and thoughts to make sense of the world they live in. Infant possesses limited mental faculties such as span of attention, understanding, reasoning, thinking, by and large remembering. As we know that cognitive development simply means mental development, which includes span of attention, understanding, knowing, reasoning, thinking and remembering. जहां तक कि इन्फेंसी का सवाल है, इन्फेंसी पीरियड या स्टेज वो स्टेज है जिसमें एक न्यूबॉर्न के पास लिमिटेड कॉग्निटिव या हम कह सकते हैं मेंटल फैकल्टीज होती है। लिमिटेड कॉग्निटिव और मेंटल फैकल्टीज पॉजेस्ड बाय द न्यूबॉर्न बेबी। वो अपनी मेंटल फैकल्टीज को भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। बच्चे में लिमिटेड स्पैन ऑफ अटेंशन होता है। व्हाट इज आउट ऑफ द साइट दैट इज आउट ऑफ द माइंड। बच्चा उसी चीज की तरफ फोकस करता है जो उसके सामने होता है। जो ही उस चीज को आप हटाओगे तो वो तुरंत फॉरगेटफुलनेस उसमें हो जाती है, क्योंकि बच्चे में लीस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस स्टेज में होती है। जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो थ्योरी प्रपोंड की है जीन पियाजे ने, कि हाउ मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द एज ऑफ द चाइल्ड। इसी तरह से बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग या रीजनिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि बच्चे की एज जो है ये बहुत कम है। वो अपनी मेंटल कैपेसिटीज या हम कह सकते हैं मेंटल फैकल्टीज का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकता है। Now we will focus on the viewpoints of various psychologists and philosophers about the cognitive development of infants. As per the John Locke, according to John Locke, child's mind is like a tabula rasa. It means by birth, human mind is a blank slate that we fill with ideas as we experience the world through the 5 senses. बच्चे का जो माइंड होता है ये कोरे कागज की तरह है। जब यही इन्फेंट विद कंटैक्ट ऑफ सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट राइट्स द मैसेज ऑन टू द माइंड ऑफ द चाइल्ड। वो एक्सपीरियंसेस रिसीव करता है विद द रिजल्ट ऑफ 5 सेंसेस।
Five senses includes the sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of taste, and sense of touch. Because senses are called the gateways of knowledge. Every bit of the knowledge is resulted with the sensory organs. और बच्चा जब सेंसेस को इस्तेमाल करता है तो ऑटोमेटिकली बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. अदरवाइज एज पर द जॉन लॉक, बाय बर्थ बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो न होने के बराबर होती है. दैट इज इक्वल टू द क्लीन स्लेट, यानी कि बिल्कुल कोरे कागज की तरह है. और जब वो एक्सपीरियंसेस हासिल करता है ऑटोमेटिकली उसमें मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम द जॉन लॉक, देयर इज द फेमस developmental psychologists, namely Jean Piaget. Jean Piaget mentioned cognitive development is based on biological maturation. It means mental development of the child improves with the age. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और की क्रक जो है cognitive development theory which is propounded by Jean Piaget. Jean Piaget का मानना है एक बच्चे की cognitive development it is based on the child's biological maturation. जितनी एज बढ़ती है उतनी बच्चे की एक इंडिविजुअल की cognitive development भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंपेरिजन करेंगे 2 साल और 6 साल के बच्चे के दरमियान, जो 6 साल का बच्चा होगा वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है और सही तरीके से कर सकता है. चाहे रीजनिंग की बात हम करेंगे, लॉजिक की बात हम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की बात हम करेंगे, एज कंपेयर टू द 2 years चाइल्ड. जो रीजनिंग कैपेसिटी 6 साल के बच्चे में होगी वो 2 साल के बच्चे में नहीं होगी. जितनी की थिंकिंग मैच्योर एक 6 साल के बच्चे की होगी वो 2 साल के बच्चे में नहीं होगी. जो स्पेन ऑफ अटेंशन 6 साल के बच्चे में होगा वो 2 साल के बच्चे में नहीं हो सकता है. जो अंडरस्टैंडिंग और नोइंग 6 साल के बच्चे में होगी वो 2 साल के बच्चे में नहीं हो सकती है. इसीलिए हम नटशल में कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, cognitive development is directly proportional to the biological maturation. जितनी की एज बढ़ती है उतनी cognitive development भी हो जाती है. नाउ अब हम वीगॉस्की के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. अकॉर्डिंग टू वीगॉस्की, mental development of the child is based on social and cultural development. जितनी की सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट होगी उतनी एक बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होगी. इसीलिए जो बिग ब्रेन्स है वो कल्चरली एडवांस्ड सोसाइटीज से निकलते हैं. जैसे कि यूरोपियन सोसाइटीज ऑलरेडी हाई प्रोग्रेसिव सोसाइटीज है, वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पीक पे है, साइंटिफिक एडवांसमेंट पीक पे है. चाहे हम इनोवेशंस की बात करेंगे, इन्वेंशंस की बात करेंगे या डिस्कवरीज की बात करेंगे, हर एक फील्ड में वो हाईली डेवलप्ड है. और जो वहाँ पर बच्चे होते हैं उनमें भी हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है क्योंकि उनका कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो बहुत आगे है. उनकी जो कल्चरल एडवांसमेंट है दैट इज पार विद द एक्सीलेंस. और इसीलिए वीगॉस्की का कहना है एक्चुअली बिकॉज ऑफ द कल्चरल एडवांसमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. वीगॉस्की आर्ग्यूड that development first takes place socially as infant observes
their parents' behavior and try to imitate it. विगॉस्की का मानना है इन्फेंट जो है वो अपने पेरेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व और इमिटेट करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उनके बिहेवियर्स को फॉलो करते हैं, अपने आप में अडॉप्ट करते हैं। जितनी कि पेरेंट्स में एडवांसमेंट होगी थिंकिंग में, रीजनिंग में, ओवरऑल बिहेवियर में, और उसका असर डायरेक्टली बच्चों पे पड़ता है। सो इट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ विगॉस्की। नटशल में हम कह सकते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स की है या न्यू बॉर्न्स की है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट और इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अगर हम एक इन्फेंट को कल्चर से दूर रखेंगे, सोसाइटी से दूर रखेंगे, तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है होना, उसमें थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो सकती है, बच्चे में रीजनिंग पावर डेवलप नहीं हो सकता है, कंप्रहेंशन डेवलप नहीं हो सकता है। जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड है, इट इज रिजल्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल सपोर्ट। जितना कि सोशल एंड कल्चरल सपोर्ट होगा उतनी कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो जाएगी। नाउ आफ्टर द इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, वी विल फोकस ऑन थर्ड डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज इमोशनल डेवलपमेंट। Emotions are reactions that human beings experience in response to events or situations. जैसे कि हम सब जानते हैं, इमोशंस आर बेसिकली मेंटल रिएक्शंस। इसीलिए हम कहते हैं एजिटेटेड स्टेट ऑफ द माइंड इज नोन एज इमोशन। चाहे हम किसी भी इमोशन की बात करेंगे, जहां तक कि सवाल है इन्फेंट्स का, न्यू बॉर्न बेबीज का, उनमें कॉमन इमोशंस होती है इन द फॉर्म ऑफ जॉय, प्लेजर, एंगर, फियर, सैडनेस एंड एक्साइटमेंट। These are the common emotions which are found among the infants. इन सब इमोशंस को वो एक्सप्रेस करते हैं। और फियर जो है ये कॉमन इमोशन और डोमिनेंट इमोशन बच्चों में पाई जाती है। इसीलिए जब बच्चे को हम, एक इन्फेंट जो 1 साल का है या 2 साल का है, वो पेरेंट्स के बगैर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी महसूस करता है, वो फियर की वजह से फिर रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि फियर इज फाउंड कॉमन एमंग द चिल्ड्रन और ये डोमिनेंट इमोशन उनमें है। जॉय ऑल्सो इज फाउंड एमंग द चिल्ड्रन। किस तरीके से वो जॉय को एक्सप्रेस करता है, पर्टिकुलरली जब आप एक बेबी को टॉय देते हो, या स्माइल जो है बच्चों में एक कॉमन इमोशन है। एक मदर जो बच्चे की तरह नजर पड़ती है तो बच्चा मुस्कुराता है। इट मीन्स फियर, जॉय, स्माइल, these are the emotions which are expressed by the infants in infancy stage। या हम सैडनेस की बात करेंगे या एंगर की बात हम करेंगे। ये नेगेटिव इमोशंस भी चाइल्ड डिफरेंट सिचुएशंस में एक्सप्रेस करता है। जब बच्चे से हम टॉय छीनेंगे तो वो सैड महसूस करता है। जस्ट एज मोस्ट पेरेंट्स फील a strong connection with their newborn after birth, babies also become emotionally attached to their parents. Infants are also strongly attached with the toys and pet animals in order to seek joy, pleasure and comfort. Dear students, जिस तरीके से माँ बाप स्ट्रांगली अटैच्ड होता है बच्चों के साथ, यानी कि किस तरीके से एक इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स रखते हैं या डेवलप करते हैं बच्चों के लिए, सेम वे
जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उन्हें भी माँ बाप के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। बच्चा स्मेल से आइडेंटिफाई मदर को करता है। अगर मदर उसके सामने नहीं होगी तो वो रोना स्टार्ट करता है। वो अपनी नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ फियर, इन द फॉर्म ऑफ सैडनेस, इन द फॉर्म ऑफ एंगर। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि इमोशनल बॉन्डिंग जो है इट इज़ नॉट ओनली फ्रॉम द पेरेंटल साइड बट फ्रॉम चाइल्ड साइड एज वेल। एक न्यू बॉर्न बेबी स्ट्रांगली इमोशनली अटैच्ड होता है पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर। वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे भी अपने इमोशंस का भरपूर इजहार करते हैं। जिस तरीके से एक इन्फेंट माँ बाप के लिए तरसता है, वो एक्सप्रेस अपनी इमोशंस को करता है। लाइकवाइज वो अपनी टॉयज़ के साथ या पेट्स के साथ भी वही इमोशनल बॉन्डिंग उसे होती है। अगर हम बच्चे से कोई टॉय छीनेंगे तो वो उसी वक्त यानी कि वीप स्टार्ट करता है। इट मीन्स वीपिंग इज द इमोशन फाउंड इन द चाइल्ड। बच्चा सैडनेस को एक्सप्रेस करता है अगर हम उसकी टॉय को छीनेंगे। जब हम बच्चे को टॉय देते हैं तो वो खुश होता है, वो स्माइल देता है। स्माइल एज इमोशन को एक्सप्रेस करता है या जॉय एज इमोशन को एक्सप्रेस करता है। इसीलिए अधिकतर बच्चे एंगेज रहते हैं टॉयज़ और पेट्स के साथ। जो इमोशनल बॉन्डिंग उन्हें पेरेंट्स के साथ होती है वही इमोशनल बॉन्डिंग उन्हें आई मीन टू से यू टॉयज़ और पेट्स के साथ होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इमोशनल डेवलपमेंट in children. Now we will focus on another development, that is social development. Man is the social animal. As she lives in the society, social development begins to start at the infancy stage. Therefore, parents play important role, especially mother, for the socialization of newborn baby. For example, skin to skin contact. Breastfeeding, talking, cuddling, and singing are the ways to interact and socialize the newborns. एरिस्टोटल का फेमस कोट है, मैन इज द सोशल एनिमल। इट मीन्स इंसान जो है वो समाजी जानवर कहलाता है, क्योंकि एक ह्यूमन चाइल्ड जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो सकती है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी और कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जहाँ तक कि इन्फेंट्स का सवाल है, उनकी सोशल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन देयर केयर गिवर्स, स्पेशली द मदर। मदर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू सोशलाइज द चाइल्ड। Socialization simply means molding and shaping the behavior of the infant is called socialization. यानी कि बच्चे के ओवरऑल बिहेवियर को मॉडिफाई करना, बच्चे में हैबिट्स डेवलप करना, प्रॉपर हैबिट्स डेवलप करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज सोशलाइजेशन एंड इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स और एनी केयर गिवर टू socialize the child in appropriate way. Or mother is being considered strongest social agent. The mother tries to socialize the child by adopting the several techniques like वो skin to skin contact बच्चे के साथ रखती है। अक्सर बेशतर उसकी गोदी में बच्चा मैक्सिमम टाइम गुजारता है, especially newborn baby up to the age of 2 years. Skin to skin contact helps us to develop the cooperation, weak feelings, sense of belongingness among the infants or newborn babies. Breastfeeding, talking frequently with the children, तो ये also sign है social development की. Cuddling simply means to give the strong hug to the baby with love and affection. और जो ये love and affection जो है ये इमोशनल बॉन्डिंग बच्चों में पैदा करता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सोशल बनता है रादर देन ए सोशल।
These are the signs of social development of the infants और न्यूबॉर्न बेबीज। अक्सर बेशतर हम ये भी देखते हैं कि जो मदर है वो सिंगिंग भी करती है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सिंगिंग? सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को चुप कराना है। मेन पर्पज़ इज दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे में वही फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाएगी। मेरे लिए कोई गाता है, मुझे कोई गोद में उठाता है, ताकि बड़े होकर उसमें भी सोशल डेवलपमेंट का असर होगा। सो दिस वाज अबाउट द सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट को मोर ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है वन ऑफ द एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट। हिज नेम इज एरिक्सन। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, trust versus mistrust begins at birth and lasts through 1 year of age. Infants learn to trust that their caregivers will meet their basic needs. If these needs are not constantly met, mistrust, suspension, and anxiety may develop. Erikson, another important developmental psychologist है, जिसने बहुत से स्टेजेस अपनी थ्योरी में दिए हैं। और उसकी थ्योरी में फर्स्ट स्टेज जो है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेज विच इज रिलेटेड टू इन्फेंसी। इस स्टेज को कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इट मीन्स बच्चे में ट्रस्ट कब डेवलप होता है और बच्चे में मिसट्रस्ट कब डेवलप हो जाता है। एरिक्सन का मानना है, जो केयर गिवर्स है लाइक पेरेंट्स, if they will come to the expectation level of the child, if they will fulfill the needs and requirements of the child, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को जब भूख लगती है तो उस वक्त मदर जो है उसे ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए या बोतल फीडिंग के जरिए दूध पिलाना चाहिए। तो इसकी वजह से बच्चे में ना सिर्फ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा बल्कि सोशल डेवलपमेंट हो जाएगी। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उस वक्त पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ मदर एंड फादर, कि वो उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाए, उसे अपनी गोद में उठा के डॉक्टर के पास ले जाए, ताकि बच्चे को ट्रीटमेंट मिल जाए एट द टाइम ऑफ एलमेंट। तो इसकी वजह से बच्चे में न सिर्फ सोशल डेवलपमेंट हो जाएगी बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें हो जाएगी। वो साइकोलॉजिकली साउंड होगा, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अगर अब न्यू बॉर्न बेबीज के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पेरेंट्स ने फुलफिल नहीं किए तो जो ये सेंस ऑफ ट्रस्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंस ऑफ मिसट्रस्ट में। इट मीन्स व्हेन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड आर नॉट फुलफिलिंग, ट्रस्ट कन्वर्ट्स इनटू द मिसट्रस्ट। और यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें मिसट्रस्ट होगा। मिसट्रस्ट ही नहीं होगा बल्कि डाउट वो क्रिएट कर जाएगा कि यहाँ पर कोई भी जो शख्स है इसकी कोई इंपॉर्टेंस मेरे लिए बनती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि बचपने में उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से हो गई है। तो अपार्ट फ्रॉम इट, इट विल गिव ऑल्सो बर्थ टू द नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रॉब्लम्स। अगर हमने बच्चे की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया है, न कि बच्चे में सेंस ऑफ मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा बल्कि इट विल लीड इन द स्टेट ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर बच्चा एंग्जाइटी का शिकार हो जाएगा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उसमें डेवलप हो जाएगी, वो माल एडजस्टेड बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगा। उसमें आप यानी कि सोशल टेंडेंसी कम देखोगे और एसोशल टेंडेंसी ज़्यादा पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल डेवलपमेंट। लास्ट डेवलपमेंट ऑफ human child is called as spiritual development. Spiritual development simply means where the individual is able to make a differentiating line between the good and the bad, right and the wrong, legal and the illegal, pure and the impure, justifiable and the unjustifiable. अब हम देखेंगे इन्फेंसी के पर्सपेक्टिव से, क्या इन्फेंसी स्टेज में वाकई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है। यहाँ तक कि रिसर्च का सवाल है, साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है
और वी कैन सिंपली से दैट फैक्ट फाइंडिंग इसका सवाल है। बच्चों में बर्थ से लेके 2 साल तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होती है, यानी कि चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड द बैड, राइट एंड द रॉन्ग, लीगल एंड द इलीगल, प्योर एंड द इम्प्योर। सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। एक छोटा बच्चा 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का बच्चा इसमें फर्क नहीं जानता है, क्योंकि बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट्स हैं, particularly the Kohlberg has given concept of one of the important theory. That theory is known as Kohlberg's moral development theory. Kohlberg का मानना है morality is based on cognitive development. जितनी कि एक इंडिविजुअल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसी तरीके से उसमें मॉरलिटी का कंसेप्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के बच्चे या 1 साल के बच्चे में मॉरलिटी न होने के बराबर होती है। 6 month चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, क्योंकि उसमें लीस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बहुत कम है, इसीलिए उसमें स्पिरिचुअल सेंस का भी कंसेप्ट नहीं होता है। सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, गुड क्या है, बैड का है। क्योंकि कोलबर्ग का मानना है जितनी की एज बढ़ती है और एज के साथ साथ बच्चे में मॉरल सेंस भी डेवलप होती है। इसीलिए एक एमिनेंट फिलासफर का कॉल है जिसका नाम है रेनी डिकॉट्स। रेनी डिकॉट्स मेंशनड फर्स्ट चाइल्ड गेट्स बर्थ, आफ्टर द 5 years बैक द गॉड गेट्स बर्थ। पहले बच्चा जन्म लेता है, फिर 5 साल के बाद ईश्वर, भगवान, अल्लाह, परमात्मा जन्म लेता है। यानी कि बच्चे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गॉड का, लॉर्ड का, ईश्वर का, अल्लाह का। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 साल की उम्र तक उसकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत कम होती है। जब उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, फिर 5 साल के बाद उसे कंसेप्ट ऑफ गॉड समझ में आ जाता है। फिर वो डिफरेंशिएट करता है गुड एंड बैड को, राइट एंड रॉन्ग को। इसीलिए साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो 3 टायर्स ऑफ पर्सनैलिटी सिगमंड फ्राइड ने दिए, id, ईगो एंड सुपर ईगो। id इज बाय बर्थ, बट सुपर ईगो इज नॉट बाय बर्थ। सुपर ईगो को हम कहते हैं गॉड इन मैन। 5 साल के बाद कंसेप्ट ऑफ गॉड बच्चे में डेवलप हो जाता है। यहां पर भी हम कह सकते हैं कि जो मॉरलिटी का कंसेप्ट है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि शुरू तौर कितना बच्चा बालिग है, तब उसे कंसेप्ट आ जाएगा गॉड का, लॉर्ड का, ईश्वर का, अल्लाह का। तब तक उसे ये समझ में नहीं आ जाएगा ये चीज़ें क्या है। नटशल में हम कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन्फेंसी में होती है वो बच्चों में मिसिंग होती है। क्यों मिसिंग होती है? क्योंकि उसमें लिमिटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से वो गॉड का कंसेप्ट या कोई भी स्पिरिचुअल कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं राइट एंड रॉन्ग के दरमियान, गुड एंड बैड के दरमियान, लीगल एंड इलीगल के दरमियान। ऐसी सेंस उस वक्त उनमें डेवलप्ड नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्फेंसी स्टेज। वी हैव डिस्कस्ड द several stages of infancy like physical development, intellectual development, जिसे हम cognitive development भी कहते हैं, और इसके बाद हमने इमोशनल डेवलपमेंट का जिक्र भी किया है। इमोशनल डेवलपमेंट के बाद सोशल डेवलपमेंट, और लास्ट में हमने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डिस्कस किया है। दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आई मीन टू से यू इन्फेंसी पीरियड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इन्फेंसी जो है ये ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बगैर भी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अब आप सीटेट के बारे में देखोगे, सीटेट में डेवलपमेंटल स्टेजेस का एक फुल फ्लेज्ड यूनिट है।
तो इसीलिए यू शुड टच विद द चैनल अकॉर्डिंगली विद द पैसेज ऑफ एन टाइम, कि जो भी कंटेंट रिलेटेड टू द कोर्स स्ट्रक्चर है हर दिन या एज पर द टाइम शेड्यूल मैं अपलोड वीडियो करता रहूँगा. If you really enjoyed the lectures, then kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.